Hello, my dear friends. How are you, friends? Welcome back to all of you in my YouTube channel. As we are discussing about synthesis, as we discussed yesterday about synthesis, then what I told you yesterday, I told you that the combination of sentences are called synthesis. In these conditions, I told you about double parts of speech. What is double parts of speech? When the verb changes his mood and goes to another parts of speech and wants to work like as noun, pronoun, adjective or adverb. That's mood of the verb is that's mood of verb generates double parts of speech. Moods of the verb change into two types: infinite verb and in non-finite verb. What I told you? Finite verb and non-finite verb, and I told you that these verbs which comes into any sentences according to his subject, that's called finite verb. He is a boy is a verb which is comes into sentences according to the he, according to the subjects, that's called finite verb. And these verb which does not come into any sentences according to subject, that's called non-finite verb. And then I told you that non-finite verbs divided into three types: participle, gerund and infinitive. And then participle divided into three types: present participle, past participle and perfect participle. Then what is present participle? With the ing form of the main verb, ing form of the main verb is called present participle. What I say? Verb's first form plus ing, that is present participle. Verb second form, that's called past participle, and having plus verb third, that's called perfect participle. And we are discussing about present participle. And in present participle, I told you a rule. What rule? When the subjects of two sentences are same, when subjects of two sentences are same, but the work done by same subject is different. Condition is that subject will same, but what work by subject done is differ. Then for first वर्ब we use present participle. हमने क्या बताया आपको कि दो सेंटेंस दिए रहेंगे और दोनों सेंटेंसेस का क्या होगा, सब्जेक्ट सेम होगा, सेम सब्जेक्ट के द्वारा दो अलग अलग कार्य किए जाएंगे, तो वहां पर पहले कार्य के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं उन दोनों को कंबाइन करने के लिए. फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था, ही ओपनड हिज ड्रॉवर, ही टुक आउट हिज पिस्टल. दोनों का सब्जेक्ट सेम था, ही और ही मतलब मैं मानता हूं राम था, राम ने ही ड्रॉवर खोला, राम ने ही पिस्टल निकाली. कर्ता एक था, सब्जेक्ट एक था, पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या था, अलग अलग था. तो इसके लिए हम पहली वर्ब के साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर देंगे, ही सब्जेक्ट को हटा देंगे और ओपन वर्ब के साथ हम आईएनजी का प्रयोग कर देंगे. और एक और एग्जांपल से ले लेते हैं, ही ओपनड द डोर एंड ही टुक आउट हिज बाइक. उसने अपना दरवाजा खोला, उसने बाइक निकाली, तो ओपनिंग द डोर ही टुक आउट हिज बाइक. तो ये आपका कल का पहला रूल था. दूसरा रूल आपको लेकर आया हूं आज के लिए मैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब होता है जब एक कार्य के तुरंत बाद, क्या कंडीशन है, जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है, तो पहले वर्ब के साथ हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं. बात सुनिएगा, when a work is totally completed, after the completed any work, the new work is started. For the first work we use present participle. दो कार्य, एक कार्य हो जैसे ही खत्म हो, जब खत्म होगा तुरंत उसी पे दूसरा कार्य ऑन द स्पॉट स्टार्ट हो जाए, तो फॉर फर्स्ट वर्ब वी यूज द प्रेजेंट पार्टिसिपल. दैट्स क्लियर? व्हाट आई से, a work is totally completed, just completed the work, the new work will be started. For the first word we use present participle. For example, he
turned left, he saw the Taj. दो सेंटेंस हैं। He turned left, he saw the Taj. सब्जेक्ट दोनों का सेम रहेगा। जैसे ही बाएं मुड़ा, जैसे ही ये कार्य खत्म हुआ, मुड़ने का कार्य खत्म हुआ, तुरंत उसने ताज को देखा। तो एक कार्य जैसे ही खत्म होगा और तुरंत उसी पर दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाएगा, तो हम पहले वर्ब के साथ हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ही को तुरंत हटाएंगे। ही को क्या करेंगे हम, ही को हटा देंगे और इस वर्ब के साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर देंगे। तो हो जाएगा टर्निंग लेफ्ट, कॉमा, और ये हो जाएगा ही saw the ताज। दैट्स क्लियर। कोई एक कार्य होगा और उस कार्य के जस्ट बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाएगा, तो हम पहले वर्ग के साथ क्या करते हैं, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर ले लें कि he ate the food, उसने खाना खाया। he ate food, he went market। जैसे वह खाना खाया तुरंत क्या किया, वो बाहर चला गया, मार्केट चला गया। तो क्या करेंगे, ईटिंग फूड, he went market। तो दो सेंटेंस को कंबाइन करते समय हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, उसके लिए दूसरा रूल ये बन के आया कि जब दोनों का क्या होगा, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाएगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। फिर से अगर मैं अगले रूल पे चलता हूं, यहीं पे आपका रूल 3 होगा कि अब यहां पर रूल 3 की चर्चा करते हैं। किसी सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कारण बताने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, किसी सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कारण बताने के लिए किया जाता है। यदि अगर ये ना होता तो ये ना होता। फॉर रीजन, फॉर टेलिंग द रीजन वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल इनटू एनी सेंटेंसेस। जैसे he is a student, he cannot become a politician। वह एक स्टूडेंट है, he cannot become a student। ये क्या है, is, और is, am, are, was वर्ब क्या होता है, वर्ब टू बी है। पहली बात ये क्लियर कर लीजिएगा कि is, am, are, was और where ये क्या है, आपकी वर्ब टू बी है। ठीक, तो वह स्टूडेंट है जिसकी वजह से वह क्या किया, पॉलिटिशियन नहीं बन सका। तो किसी सेंटेंस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब होता है जब हमें रीजन बताना होता है, और इसको इजिंग हैविंग नहीं करेंगे, बी की फॉर्म में इसको बीइंग कर देते हैं। तो इसको अगर कंबाइन अगर करना है तो हो जाएगा बीइंग अ स्टूडेंट, ही कैन नॉट बीकम अ पॉलिटिशियन। तो बात क्या आई कि सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के साथ कारण बताने के लिए किया जाता है। देखिए अब हम थोड़ा एक नई चीज आपको बताते हैं जो बहुत ही कम लोग आपको बता सकते हैं ये चीजें। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। मैं चर्चा करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं डिटेल्ड एंड अनअटैच्ड पार्टिसिपल के बारे में। कोई पार्टिसिपल डिटैच्ड कब होगा या अनअटैच्ड कब होगा, या कह सकते हैं कि किसी पार्टिसिपल के यूज को हम डिटैच्ड पार्टिसिपल या अनअटैच्ड पार्टिसिपल कब कहते हैं। when the participle does not join with the correct subject, that's mistake called detached or unattached participle।
जब किसी सब्जेक्ट को उचित पार्टिसिपल के साथ नहीं जोड़ा जाता है तो इस भूल को हम क्या कहते हैं? डिटैच्ड और अनअटैच्ड पार्टिसिपल कहते हैं। उचित सब्जेक्ट से क्या मतलब है कि जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होगा तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज नहीं करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो लेकिन जब हम कर देते हैं तो यही भूल हमारी क्या कहलाती है? डिटैच्ड एंड अनअटैच्ड पार्टिसिपल का यूज कहलाती है। भूल डिटैच्ड और अनअटैच्ड पार्टिसिपल का यूज कहलाती है। तो इस सेंटेंस को जैसे अगर आप जोड़ना चाह रहे हैं तो आप लोग क्या जोड़ देते? इसको आप सब कर सकते थे क्या? वॉकिंग एलॉन्ग स्ट्रीट कॉमा राम गिव मी अ पेन। एग्जाम में आएगा तो तुरंत आपका दिमाग यही काम करेगा, बट मैं क्या बताऊंगा, ये आपका पूरी तरह से गलत तरीका है। ये गलत है आपका। सही तरीका क्या है? इंग्लिश के एक बहुत ही, इसे हम कह सकते हैं एक अच्छे ग्रामेरियन थे जिनका नाम है नेस्फील्ड। According to the Nesfield, if we are gonna to combine to any sentences, we have to follow the structure of while plus subject plus verb. If the subjects of any sentences are not same and we wants to join them by the present participle, then we simply cannot join them. We have to follow a formula. The formula is given by him is a while plus subject plus verb. ओके, देन कोई भी सेंटेंस क्या किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू नेस्फील्ड दो सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर अलग अलग है तो उसे हम नहीं जोड़ सकते हैं। अगर जोड़ दिया तो एक डिटैच्ड और अनअटैच्ड पार्टिसिपल हो जाएगा। तो उसे जोड़ा कैसे जाएगा? अकॉर्डिंग टू नेस्फील्ड उसे हम व्हाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्मूले पर रखकर जोड़ सकते हैं। आइए जोड़ते हैं अब इसको हम। अब सही तरीके से अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करेंगे? व्हाइल लगाएंगे पहले। व्हाइल सब्जेक्ट क्या है? ही, और वर्ब फर्स्ट मतलब उसको हम क्या बना देंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में ले जाएंगे। तो वॉकिंग हो नहीं सकता क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल की आईएनजी फॉर्म के पहले हम ही साथ इसका प्रयोग करते हैं, वाज का। व्हाइल ही वाज वॉकिंग along street, और या राम मतलब राम और ही एक ही है। ही किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। तो क्या हो जाएगा? राम, ऐसे कर देते हैं आपको, गिव मी अ पेन। दैट्स क्लियर। तो मैंने क्या बताया? जब किसी सब्जेक्ट को उचित पार्टिसिपल के साथ नहीं जोड़ा जाता तो ये मिस्टेक डिटैच्ड और अनअटैच्ड पार्टिसिपल कहलाती है। तो उसको हम सही करने के लिए अकॉर्डिंग टू नेस्फील्ड क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू द नेस्फील्ड हम उसे व्हाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट के फॉर्मूले पर रखकर करेंगे। सपोज एग्जांपल और लेता हूं, अ फार्मर वाज प्लाउइंग हिज फील्ड, ही बिट अ स्नेक। एक फार्मर किसी खेत जोत रहा था तो उसे क्या करेंगे? व्हाइल अ फार्मर प्लाउइंग हिज फील्ड, ही बिट अ स्नेक। दैट्स क्लियर। तो ये था आपका डिटैच्ड और अनअटैच्ड पार्टिसिपल की सारी बातें। हाँ, चलिए अब ये रूल है कि पार्टिसिपल यूज्ड एज प्रीपोजिशन। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? कुछ पार्टिसिपल ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन की भांति यूज किए जाते हैं। 8 वर्ड ऐसे हैं जिसको रट लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, उसको रट्टा मार लीजिए कि कुछ 8 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल में एज अ प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। उनमें डिटैच्ड और अनअटैच्ड का दोष नहीं पाया जाता है, चाहे दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग ही क्यों न हो। ये दोनों जहां भी आएंगे हमेशा एज अ पार्टिसिपल यूज किए जाएंगे, एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किए जाएंगे। ये 8 वर्ड होते हैं: कंसिडरिंग, कंसर्निंग, अलाउइंग, जजिंग, रिगार्डिंग, रेफरिंग, स्पीकिंग एंड ग्रांटिंग। कंसिडरिंग, कंसर्निंग, अलाउइंग, जजिंग, ग्रांटिंग, रेफरिंग एंड स्पीकिंग, जजिंग। ये सब वर्ड जितने हैं, कंसिडरिंग, कंसर्निंग, अलाउइंग, ग्रांटिंग, जजिंग, रिगार्डिंग, रेफरिंग एंड
स्पीकिंग, ये आठों वर्ड कंसिडरिंग, कंसर्निंग, अलाउिंग, जजिंग, ग्रांटिंग, रेफरिंग, स्पीकिंग, जितने भी आपके 8 वर्ड्स इसको रट लीजिएगा। किसी भी सेंटेंस में आएंगे एज अ प्रीपोजिशन यहाँ यूज किए जाएंगे कि there are some participle which are always used as a preposition into any sentence, considering, concerning, allowing, granting, judging, regarding, referring. That should be clear. And I want to give some examples for it. Considering my circumstance, I allowed for this. That's clear. तो ये क्या होगा, ये वर्ड्स क्या होंगे, ऐसे क्या किए जाते हैं, एज अ प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। तो भैया जी आपके सारे रूल्स हो गए प्रेजेंट पार्टिसिपल के। किसी सेंटेंस में किसी दो सेंटेंस को जोड़कर जब ये किया जाता है तो ये क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। तो दो सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने में प्रेजेंट पार्टिसिपल का योगदान कैसे होता है, उसके सारे रूल्स के बारे में हमने चर्चा कर ली। हमने इसके सबसे पहला रूल क्या बताया कि जब दोनों का सब्जेक्ट सेम होगा और दोनों के द्वारा अलग अलग कार्य किया जाएगा तो पहले के साथ हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। दूसरा रूल बताया कि जब एक कार्य समाप्त होता है और उसके जस्ट बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है तो पहले वर्ब के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तीसरा बताया कि कारण बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। फिर मैंने बताया डिटैच्ड और अटैच्ड का दोष क्या होता है, जब दोनों को उचित सब्जेक्ट के साथ नहीं जोड़ा जाता है तो वहां पर डिटैच्ड और अनअटैच्ड का दोष पाया जाता है। फिर बताया कि कुछ पार्टिसिपल ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन की भांति यूज किए जाते हैं। तो ये था आज प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में मैंने चर्चा की, और कल आपके लिए मैं लेकर आऊंगा पास्ट पार्टिसिपल। तब तक के लिए बने रहिए। सारे रूल्स अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।